Union Minister Dharmendra Pradhan has escalated his attack on the opposition, saying that the India alliance is facing internal conflict. He also went on to say that the opposition has no goal or agenda and that they are just a reactionary force. The BJP says that the India alliance is now completely scattered. Let's listen in to Dharmendra Pradhan. भयंकर अंतर्विरोध से ग्रस्त ये समूह, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शनरी फोर्स है जिसको अनेक प्रांत में लोगों ने हराया है। अभी अभी दिल्ली ने दोनों को हराया। जो पार्टी लंबे समय तक पहले दिल्ली को शासन किया था और पिछले 10 साल से जो लोग शासन कर रहे थे, दोनों को हरा के भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को भरोसा करके अभी एक नई सरकार बनाने का फैसला किया है। इंडी गठबंधन देश में बिखर चुका है। Akhil is joining me live on this broadcast. Akhil, this is a big attack coming in from Dharmendra Pradhan, calling India a scattered force because the India alliance ahead of the Delhi Assembly elections were completely riddled with conflict, and that's why the Aam Aadmi Party and the Congress parted ways and they fought independently, and the results are now before the viewers. Akhil, tell us about this attack coming in from Dharmendra Pradhan. Well, Deepak, if you see at this point in time, Union Minister Dharmendra Pradhan has basically commented on it that if you see there's an internal fissure which has been going on in the India alliance for a very long time. And if you talk about the Lok Sabha election and post that what we have seen in several elections, and then when Delhi elections happened on February 5th, prior to that, what we have been witnessing that there have been several comments from both the parties, from the Aam Aadmi Party as well and from the Congress Party as well. And then there was an internal rift which has been going on amongst the India alliance leaders, and then Arvind Kejriwal came out and he posted on the social media platform X saying that Aam Aadmi Party is going to fight this battle all alone. And then what we saw, the result which came out yesterday last evening, that Aam Aadmi Party could barely able to manage approximately 22 seats in the last assembly elections which held on February 5th. So at this point in time, if you see, the BJP has emerged victorious, and after that, if you see, there have been several comments from the BJP senior leaders as well. If you talk about Tajinder Singh Marwah, who is a newly elected MLA from Jangpura constituency, last evening he was attacked when he took out a victorious rally in his constituency in Jangpura. At that point in time, he was attacked by some Aam Aadmi Party workers, and after that he also lodged a police complaint in that regard, and he has said that this is a very unfortunate incident, and he further added saying, and I quote, "Ye Aam Aadmi Party ke haar ki baukhalahat hai." This is what he said to be an exclusive interview few moments back. So at this point in time, if you see, most of the BJP leaders are saying that some Aam Aadmi Party leaders didn't expect this kind of results. That's why they are behaving like this at this point in time. Back to you. Stay on with me, Akhil, because after the historic mandate in the Delhi Assembly elections, marking the end of the 27-year-long drought and jinx, the BJP High Command has started brainstorming to pick a name for the post of the Chief Minister. And the sources have said that the Saffron Party will soon call a formal meeting to discuss the probable names. And they also added that BJP's giant slayer, Paresh Verma, who defeated former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Sandeep Dixit from the New Delhi constituency, is leading in the CM race. First up, getting in multiple reactions from BJP. Take a listen in. मैं इतना ही कहूँगा कि झूठ की गारंटी वाले अब हमारी पक्की गारंटी के लंबे समय तक के लिए सत्ता से बाहर चले गए और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। भ्रष्टाचारी झूठ की गारंटी वालों को बाहर करके दिखाया। सबसे बड़े नेता हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, बाकी बड़े चेहरे हार गए, और उनकी जो मुख्यमंत्री हैं वो डांस करती हुई अपना चुनाव जीतते दिख रही हैं। क्या मैसेज जाता दिख रहा है सर? देखिए, एक प्रयास मुझे लगता है अंदर ही अंदर किया गया। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के होर्डिंग बैनर पोस्टर से सिटिंग मुख्यमंत्री की फ़ोटो हटा दी, फिर उनके अपने ही चुनाव निपटाने में जो षड्यंत्र वो पहले से अपने फाउंडिंग मेंबर को निकालने के लिए अरविंद जी और इनकी टीम करती रही, यहाँ पे बाकियों को निपटाते खुद ही निपट लिए। तो मुझे लगता है इस पर कुछ खुशी ज़्यादा हुई होगी। भविष्य क्या देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी का, क्या रहेगा? मैंने तो कहा आपको कि जो झूठ की गारंटी देने वाले अब पक्की गारंटी है
कि वो लंबे समय के लिए बाहर चले गए। जो पहले के मुख्यमंत्री थे वो दावा करते हुए नजर आते थे कि कभी भाजपा सरकार में नहीं आ सकती, कभी मोदी जी भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं बना सकते। देखिए, दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से प्यार पहले भी दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्यार नहीं दिया। पिछले 3 बार से लोकसभा की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही थी। हम 15 साल एमसीडी के अंदर हम रहे, लेकिन यस, कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर जो हमें अपेक्षा थी वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार हम पूरे दमखम से, नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा जो है पूरे जो देश में है वो दिल्ली के अंदर भी कायम था। और जो हमने लोगों को वचन दिया था कि डबल इंजन की सरकार अब दिल्ली के अंदर भी डबल तेज़ी से विकास करेगी, उस पर लोगों ने विश्वास जताया है और जो प्यार दिया है उसको हम पूरी तरह से उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। डे 1 से ये हमारा टारगेट है। लोग यहाँ, दिल्ली के लोग बाहर से भी आते हैं, जो लोग रहते हैं, चाहे वो लोग देखते हैं कि बाहर के राज्यों में सरकारें निरंतर 2 बार 3 बार बनती हुई आती हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहाँ काम होता है। अब वो वक्त आ गया थे, लोग दुखी थे केजरीवाल सरकार से कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े, भ्रष्टाचार और विकास कार्य बिल्कुल ठप थे, उससे लोग दुखी थे। और जो हमने विजन पेश किया था कि आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर दिल्ली कैसी होगी, उस पर लोगों ने विश्वास जताया। इसका लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम डे 1 से ही काम पे शुरू हो गए हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बन के निश्चित तौर के ऊपर जो डबल तेजी से हमने विकास का जो मॉडल हमने पेश किया है उसको हम पूरा करेंगे। दिल्ली में आज जो बर्बादी की है, गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी यमुना जी, ये क्या कारण है? क्योंकि सारा पैसा जो है वो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर ले गए हैं। हजारों करोड़ रुपए की करप्शन है। अब तक के दिल्ली में मैं कहना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े अगर घोटाले निकलेंगे वो दिल्ली से निकलेंगे। कैसे? कम से कम 8-10 हज़ार करोड़ रुपया तो यमुना जी की सफाई के नाम से जो खाया वो निकलेगा, फिर स्कूलों के नाम से खाया है, फिर बिजली की मैं बताना चाहता हूं कि 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 12% इंटरेस्ट को करके 18% से खुद ही माफ़ कर दिया, और उसमें हजारों करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके साथियों ने लिया है। तो कैग की रिपोर्ट टेबल होनी बड़ी ज़रूरी है। हम लोग सबसे पहले कैग की रिपोर्ट भी टेबल करेंगे और दिल्ली के लोगों को ये बताएंगे कि देखिए कैग ने क्या बताया, कितने हज़ार करोड़ अरविंद केजरीवाल जी अपने घर लेके गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी को सारा पैसा वसूल किया जाएगा।